कूल है. सो गाइस, आई थिंक थोड़ा सा वी विल ना कवर अ लिटिल बिट ऑफ रिकर्शन टुडे एंड लिटिल बिट मोर ऑन रिकर्शन टुडे. और थोड़ा बहुत हम रिकर्शन ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं. एंड we will cover certain questions that have appeared in interviews in the past, rather than building just base today. ऐसा नहीं कि बाकी questions appear नहीं करते. Palindrome and all those questions that we covered earlier. ठीक है, palindrome नहीं, I believe we covered factorial Fibonacci, ये questions भी आते हैं. बट थोड़ा सा और हम डीपर जाएंगे स्ट्रिंग्स में. द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू विल टिपिकली गेट, दैट विल टिपिकली चैलेंज यू इन दीज इंटरव्यूज. दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट वी विल कवर टुडे, थोड़ा एरेज में, थोड़ा स्ट्रिंग्स में. एंड लेट्स सी. ठीक है, तो आई थिंक, आई होप, मतलब यू हैव taken the time available to you to build some base over on over, so to build a strong base in recursion. Especially recursion थोड़ा सा different style of programming है, तो a lot many times people do get challenged. And but I hope कि मतलब you took out some time to cover recursion, and hence you'll be able to मतलब understand and answer these questions that we will cover today adequately, right? ठीक है. Cool है. Uh, then let's kind of get started now. And let's ठीक है. So let's get started now. ठीक है. तो यार थोड़ा सा um, what I want to talk about before we get started, I want to talk about allotment times. What you'll find is that uh, many of you start focusing on say dynamic programming or say मतलब I've heard say 3D algorithms and a lot of those things actually. Uh, 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 Believe me, I think मतलब it's an overkill at your stage. Obviously, you can try, you can try. That is on your own, ठीक है. But it's an overkill. Obviously, we'll be covering a bits and pieces of everything. But it's an overkill. Right now, what should be focusing on at this stage is getting everything under your control. That everything that revolves around strings and arrays, especially taken, rather than moving into say trees or graphs and all. थोड़ा सा strings and arrays पे focus करिए, make a strong base in it, and the rest will look very simple to you. ठीक? Um, and मतलब typically this is something that we are going to cover more on today also. And I hope that makes sense. ठीक है, relatively easier है, relatively strong foundation देता है आपको, मतलब easier and more asked also in interviews. ठीक है, and gives you a strong foundation. We'll be sharing a lot of content with you. Previously क्या पूछे गए हैं questions, किस किस कंपनी ने क्या क्या questions पूछे हैं. ठीक है, then मतलब it will help you realize कि भाई this is the kind of content that is coming up, right? ये आपको realize करने में help करेगा. ठीक है, तो वो भी हम share करेंगे आपके साथ. But meanwhile, let's kick off today's session. ठीक है, तो आज यार हम recursion पे थोड़ा और deeper जाएंगे. ठीक है, but before we go deeper into recursion, I want to talk about a function called slice. हमने पहले भी देखा है slice, sorry, हमने पहले भी देखा हुआ है, but still I want to talk about it. ठीक है, तो let's say कि slice function होता क्या है. ठीक है, so what is slice function? Let's say कि हमने एक array define कर, एक string define कर लिया PQRS. ठीक है, let's say we define an array. Should be much better now. I believe मतलब ठीक है, तो गाइस, हाँ, हमने एक एरे डिफाइन कर लिया. लेट्स से वी डिफाइंड एन एरे PQRS. ठीक है, या PQRS TU कर दिया हमने. ठीक है, व्हाट डज स्लाइस फंक्शन डू? तो स्लाइस फंक्शन क्या करता है एक बार देखते हैं. ठीक है ना,
ये बहुत क्विकली वी विल कवर दिस, ठीक है। स्लाइस फंक्शन करता क्या है, किसी भी एरे पे स्लाइस फंक्शन, सॉरी किसी भी स्ट्रिंग पे, एरे और स्ट्रिंग दोनों पे यूज होता है स्लाइस, बाय द वे, ठीक है। बट हम स्ट्रिंग से थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। विच इज की यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। व्हाट डज स्लाइस डू, स्लाइस में आप एक स्टार्ट इंडेक्स डालते हैं और एक एंड इंडेक्स डाल सकते हैं। आप चाहो तो एंड इंडेक्स ओमिट भी कर सकते हैं, यू कैन ओमिट दिस आल्सो, ठीक है। व्हाट डज स्लाइस फंक्शन डू, हेलो पे अगर आप स्लाइस करोगे तो आप वो बताते हो आप कि भाई स्लाइसिंग यहाँ से स्टार्ट करो, यानी थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करो, यानी 0 1 2 को ओमिट करो एंड थर्ड इंडेक्स से स्लाइसिंग स्टार्ट करो, ठीक है। एंड इट स्टार्ट स्लाइसिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। एंड व्हाट इट सेज इज कि भाई कहाँ तक स्लाइस करना है, तो जितना बचा हुआ है, देयर इज नो एंड, हेंस टिल दी, मतलब कोई एंड इंडेक्स नहीं है, हेंस टिल दी एंड, सो इट रिटर्न्स बैक एल ओ, दैट्स इट, ठीक है। ये एल ओ रिटर्न कर देता है, व्हिच यू कैन सी हियर, ठीक है। स्लाइस में ना इंडेक्स में माइनस भी आ सकता है, ठीक है। माइनस बोलता है कि लास्ट के 3 एलिमेंट्स, ये -3 मतलब लास्ट के 3 एलिमेंट्स प्रिजर्व कर लो, लास्ट के 3 एलिमेंट्स रिटर्न करो, दैट्स इट, ठीक है। दिस वर्ड माइनस सेज, माइनस मींस कि पीछे से काउंटिंग चालू करो, ठीक है। ठीक है। कहाँ पे हैं हम, ठीक है। सो व्हाट एल्स, हाँ दोनों ही दिए हुए, मान लो स्लाइस में स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों इंडेक्स दिए हुए हैं, तो क्या होता है, बोल रहा है स्टार्टिंग यानी 0 से करो, यानी यहां से, ठीक है। तो एच से लेकर कहाँ तक आपको सबस्ट्रिंग देना है, तो एच से लेकर 2 तक, ठीक है। तो 0 1, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। यानी 2 तक नहीं पहुंचना है आपको, 2 से पहले एंड करना है आपको, ठीक है। तो आपको ये मिल गया सबस्ट्रिंग में, ठीक है। तो व्हाट डज स्लाइस डू, स्लाइस डज दिस, ठीक है। एक बार अब ध्यान से देखोगे तो आपको सबस्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। जावास्क्रिप्ट का सबस्ट्रिंग फंक्शन भी तो है सर, हाँ बिल्कुल है। SUB, मैं आपको दिखाऊं तो सबस्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट, तो सबस्ट्रिंग फंक्शन भी है जावास्क्रिप्ट में, बिल्कुल है, ठीक है। एस SUB str फंक्शन है, ठीक है। देखो SUB str फंक्शन है, ठीक है। बट मतलब स्लाइस इज मोर वर्सेटाइल, मोर यूज्ड, मोर पावरफुल, ठीक है। तो हम स्लाइस यूज करेंगे हैं, ठीक है। तो स्लाइस क्या करता है, आपको एक एक स्ट्रिंग को कट करने में हेल्प करता है, आपको एक कट करने में, उसका एक पार्ट देने में, उसका एक सबस्ट्रिंग देने में आपको हेल्प करता है, ठीक है, स्लाइस फंक्शन। टुडे गोइंग फॉरवर्ड, या फिर जो भी अरे जितने भी आपके जितने भी आपके स्ट्रिंग के ये होंगे ना, क्वेश्चंस होंगे, उनके में उनमें स्लाइस जो है बहुत एक्सटेंसिवली यूज होगा, ठीक है। सो लेट्स कम टू आवर ये, यहाँ पे हम स्लाइस ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। शो यू स्लाइस, बट बिफोर दैट, ठीक है, आई वांट यू टू कवर अ क्वेश्चन, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे राइट करता हूँ, आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन थ्रू रिकर्शन एंड आल्सो यूज स्लाइस इन इट, ठीक है। द क्वेश्चन हियर इज कि भाई write a program to reverse a string, this is the question, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कि भाई एक प्रोग्राम लिखिए टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, ये आपको प्रोग्राम लिखना है, ठीक। यूज रिकर्शन, ये स्लाइस भी यूज करना ही, ठीक है। एंड प्लीज गिव इट अ शॉट सेल्फ फर्स्ट। मतलब इसका क्या है, मतलब क्या है कि भाई लेट्स से कि आपको अगर एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है, हेलो, तो व्हाट विल बी दी प्रोग्राम आउटपुट, क्या देगा प्रोग्राम आपको, तो प्रोग्राम विल गिव यू आउटपुट एज OLLEH, दिस इज व्हाट द प्रोग्राम विल गिव यू आउटपुट एज, यानी आपका रिवर्स कर दिया स्ट्रिंग को, ठीक है। यानी अगर आपका स्ट्रिंग, अगर मान लो कि योर स्ट्रिंग इज फर, ठीक है, तो द आउटपुट विल बिकम RUF rough, ठीक है। This is what the program is asking you to do. It is asking to reverse the string. Take next minute to attack this problem. बहुत simple है, you should be able to attempt it.
ठीक है गाइज, आई होप मतलब यू आर एबल टू अटैक दिस प्रॉब्लम। और मैं एक बार ना थोड़ा सा लेट मी स्टार्ट बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, विच इज कि भाई अपने को एक स्ट्रिंग रिवर्स करना है। ठीक है, लेट्स ट्राई इट। ठीक, तो भाई अपने को लेट्स ट्राई इट। तो भाई लेट्स से कि भाई अपने वी हैव टू राइट अ फंक्शन सेज कि भाई रिवर्स करना है अपने को स्ट्रिंग को। ठीक है, एंड इट विल टेक अ स्ट्रिंग str बोल देते हैं स्ट्रिंग को। ठीक, रिवर्स करने के लिए फंक्शन है। ठीक है, what will it do? It will check कि भाई if मतलब we have to write a function to reverse a string, say hello to OLLEH, FUR to RUF, जो भी है, it takes in a string and it reverses it। ठीक है, तो भाई रिकर्शन से करेंगे, वही रिकर्शन से ही करेंगे जैसे हमने बताया आपको। ठीक है, रिवर्स स्ट्रिंग के लिए टिपिकली आप रिकर्शन ही यूज करते हैं। ठीक है, तो व्हाट हाउ विल वी मैनेज रिकर्शन हियर। ठीक है, तो आप देखो एक बार ध्यान से कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, एक बार इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हेलो का रिटर्न अगर OLEH करना है, मतलब व्हाट हैज टू हैपन इज दैट कि भाई हेलो विल बिकम, यानी हेलो विल फर्स्ट बिकम, फर्स्ट वी विल डील विथ H प्लस। ठीक है, वी विल से कि भाई रिवर्स रिवर्स द रिमेनिंग स्ट्रिंग। ठीक है, यानी सबसे पहले पहला एलिमेंट हमने रिवर्स कर लिया, एंड देन व्हाट वी से इज कि भाई रिवर्स द रिमेनिंग स्ट्रिंग। ठीक है, विच इज ELLO। ठीक है, ये हमने बोला। ठीक है, तो पहला एलिमेंट यहाँ नहीं ऐड होगा, पहला एलिमेंट लास्ट में कॉन्कैट होगा। ठीक है, एंड वी विल से कि भाई बाकी का सारा रिवर्स होके आएगा। ठीक है, यानी मतलब यहाँ से क्या आ रहा होगा, यहाँ से आएगा, सॉरी हाँ, यहाँ से आएगा OLLE। ठीक है, और उसमें हम H को ऐड कर देंगे, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। ठीक है ना, तो पहला एलिमेंट हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, व्हाट एल्स, इसके बाद अगले स्टेप में क्या आएगा, अगले स्टेप में आएगा अगले स्टेप में आएगा भाई रिवर्स करो नेक्स्ट एलिमेंट, यानी ई को हम ई से हम डील कर लेंगे। ठीक है, एंड वी विल से कि भाई रिवर्स ऑफ ELLO इज व्हाट। ठीक है, ई विल कम टू द एंड ऑफ ELLO। ठीक है, यानी ई यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, और एच तो पहले से था ही था। ठीक है, पहले से था ही एच। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, अब इसको जो रिवर्स करके आएगा उसमें ई जोड़ देंगे, फिर एच तो पहले से था ही बात हमारे पास। ठीक, दिस वाज द व्हाट द रिवर्स ऑफ hello looks like in the next step। the next step will be कि भाई यहाँ से एक L और निकल गया और यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पे एक L जुड़ गया। ठीक है, और पहले से हमारे पास E और S तो थे ही लास्ट में। ठीक, एंड द नेक्स्ट स्टेप विल लुक समथिंग लाइक दिस कि भाई यहाँ से एक और L निकल गया, और पुराने एलिमेंट्स तो है ही हमारे पास अभी। ठीक, जब लास्ट में व्हेन इज दी व्हेन इज मतलब भाई व्हेन विल यू रिटर्न जस्ट ओ। ठीक है, ओ रिटर्न आप अगले स्टेप में कुछ नहीं करोगे, विल जस्ट रिटर्न ओ वाई, सॉरी वाई एम सेइंग यू विल ओनली रिटर्न ओ बिकॉज कि भाई अब कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है आपके पास। ठीक है, आहा, यानी वंस यू ओनली हैव वन एलिमेंट रिमेनिंग, जब आपके पास केवल एक ही एलिमेंट रिमेनिंग है, then what does it become? It just returns itself, that's it। ये खुद को रिटर्न करता है, that's it। this is what it will return। और पहले से आपके पास तो जो था सो है ही। ठीक, so this is what the program should look like। ठीक है, the program should look something like this। ठीक है, कि भाई we will keep returning the first element and add it to the last, take it to the end, and we'll say कि बाकी एलिमेंट्स के रिवर्सल के एंड में ये ऐड हो जाएगा। फिर बाकी एलिमेंट्स का रिवर्सल क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट निकाल के लास्ट में जोड़ देंगे और हम बोलेंगे कि
इसका फर्स्ट एलिमेंट बाकी एलिमेंट्स के रिवर्सल के एंड में ऐड हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फॉर्थ रिकर्सिवली, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, एक बार देखिए, एक बार जरा सही लग रहा है आपको, यू थिंक दिस इज राइट, सही है ना भाई? एक बार टेक अ लुक एट इट एंड मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हम्म, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, लॉजिक आप समझ रहे हैं, ठीक है। और हमने देखा कि भाई हम रिटर्न कैसे करते हैं, तो रिटर्न कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई रिटर्न व्हाट, ठीक है, क्या रिटर्न करना है हमें यहाँ से, कोई भी फंक्शन रिवर्स कर रहा है तो क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न द रिवर्स ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स एक्सेप्ट दी फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर छोड़ के बाकी सबका रिवर्स इसको रिटर्न करना है, तो इट विल से कि भाई फर्स्ट कैरेक्टर को कट कैसे करते हैं, तो वी से कि भाई str डॉट स्प्लाइस द फर्स्ट कैरेक्टर, यानी फर्स्ट कैरेक्टर के बाद से अपने को स्टार्ट करना है, ठीक है, वी हैव टू स्टार्ट आफ्टर दी फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। ये हमने बोला str डॉट स्प्लाइस कर दो फर्स्ट कैरेक्टर को, और इसका रिवर्स ले लेना, ठीक है। इसका रिवर्स कैसे लेंगे हम भाई, इसका रिवर्स हम ऐसे लेंगे, ठीक है, विल से कि रिवर्स, अरे रिवर्स दिस, रिवर्स द रिमेनिंग कैरेक्टर्स आफ्टर कटिंग दी फर्स्ट कैरेक्टर, ये बोला हमने स्प्लाइस से, ठीक। एंड एंड में व्हाट डू यू डू, एंड में जस्ट ऐड दी फर्स्ट कैरेक्टर, दैट्स इट, जस्ट ऐड दी फर्स्ट कैरेक्टर इन दी एंड, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है भाई, हेलो को रिवर्स करना है अगर, तो व्हाट इट विल इट बिकम, ठीक है, स्प्लाइस कर दिया फर्स्ट कैरेक्टर, एच को स्प्लाइस कर दिया, ठीक है, जो बचा है तो रिवर्स एलो बचा है, ठीक है, प्लस वी ऐड दी फर्स्ट कैरेक्टर एट दी एंड, ठीक है, ठीक है। अब रिवर्स ऑफ रिमेनिंग क्या होगा, बचे हुए का रिवर्स क्या होगा, यानी रिवर्स ऑफ एलो क्या होगा, ठीक है, रिवर्स ऑफ एलो विल बिकम अगेन फर्स्ट कैरेक्टर, यानी ई को काट के लास्ट में जोड़ देंगे, ठीक है, यार लास्ट में जोड़ देंगे, ठीक है, एंड टू इट विल गेट एडेड, मतलब इसके आगे व्हाट विल गेट एडेड इज रिवर्स ऑफ एल एल ओ, यानी फर्स्ट कैरेक्टर को कट करके जो बचा है, ठीक। सिमिलरली एल एल ओ का रिवर्स क्या होगा, एल एल ओ का रिवर्स होगा भाई फर्स्ट कैरेक्टर हटा दिया, बाकी का रिवर्स प्लस फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट में जुड़ गया, ठीक। ओ का रिवर्स क्या होगा, ओ इज नाउ जस्ट वन कैरेक्टर, ठीक है। तो ओ में से अगर स्प्लाइस करेंगे, ठीक है, तो कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है, तो रिवर्स ऑफ नथिंग डज नॉट मेक सेंस, हेंस व्हाट वी विल डू इसकी वी विल चेक, ठीक है, वी विल चेक कि भाई अगर स्ट्रिंग की डॉट लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू वन, ठीक है, या फिर ऐसे बोल देते हैं ना, इक्वल टू वन की जगह पे इज ग्रेटर देन, सॉरी, इज लेस देन या इक्वल टू वन, मान लो अगर कोई स्ट्रिंग ब्लैंक स्ट्रिंग डाल रहा है तो भी इट शुड बी एप्लीकेबल, राइट। इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज लेस देन इक्वल टू वन, देन व्हाट डू यू डू, इसकी उसका रिवर्स वो स्ट्रिंग अपने आप में हो जाता है, द स्ट्रिंग इटसेल्फ इज द रिवर्स ऑफ इटसेल्फ, यानी ओ का रिवर्स क्या होगा, ओ का रिवर्स ओ ही है, ठीक है ना, अगर सिंगल कैरेक्टर है तो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द प्रोग्राम डज नाउ, ये हमारा बेस केस है, ठीक है, दिस इज द बेस केस कि भाई एक ही जब कैरेक्टर बचा है, एक से कम कैरेक्टर्स बचे हैं, देन द रिवर्सल इज द कैरेक्टर इटसेल्फ, ठीक है। एंड दिस इज आवर रिकर्शन कोर लॉजिक, ठीक है, कोर लॉजिक हमारे रिकर्शन। take a look at this solution, ठीक है। before taking a look at this solution I want to just quickly cover once again slice, ठीक। slice क्या करता है भाई, अगर मान लो एक string है, इस पे अगर आप slice लगाते हैं, ठीक है, तो slice के साथ दो indexes आते हैं, मैं अब दोबारा से बता दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। स्लाइस पे आप टिपिकली दो इंडेक्सेस होते हैं, स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स, ठीक है। स्टार्ट इंडेक्स क्या करता है, बोलता है कि भाई इतने कैरेक्टर्स को स्किप करना है, ठीक है, यानी अगर स्टार्टिंग इंडेक्स, अगर बाय द वे आप दोनों इंडेक्सेस देना जरूरी नहीं है, स्टार्ट एंड एंड दोनों देना जरूरी नहीं है, देखो जैसे यहाँ पे केवल स्टार्ट दिया हुआ है, ठीक। तो अगर केवल स्टार्ट दिया हुआ है तो बोलता है कि तीन कैरेक्टर स्किप करने हैं, तो यानी 1 2 3 फर्स्ट थ्री कैरेक्टर स्किप कर दिए, या फिर आप ऐसे बोलते हैं कि थर्ड इंडेक्स से चालू करना है, तो 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स से चालू कर देगा, ठीक है। बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट से कि तीन कैरेक्टर्स स्किप करने हैं, तो इट विल स्किप द फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स, ठीक है, एंड द रिमेनिंग कैरेक्टर्स विल बी रिटर्न्ड एज रिजल्ट, ठीक है, एज सब स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये रहा LO रिजल्ट में आ गया आपका, ठीक। अगर सिमिलरली आप -3 डालते हैं
तो क्या बोलता है कि पीछे से यानी फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग 3 कैरेक्टर्स अपने को काउंट करने हैं, यानी इट कीप्स द 3 कैरेक्टर्स एल एल ओ, दैट्स इट। ये रहा, ठीक है, ये रहा माइनस क्या करता है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हैव बोथ द इंडेक्सेस आल्सो, ठीक है। तो बोथ द इंडेक्सेस क्या है, तो 0 बोल रहा है 0 कैरेक्टर स्किप करने हैं, एंड 2 बोल रहा है सेकंड कैरेक्टर तक अपने को जाना है, ठीक है। यानी 0 कैरेक्टर स्ट्रिंग करने हैं मतलब एच से चालू हो जाएगा, ठीक है, एंड सेकंड कैरेक्टर तक जाना है मतलब एच और ई आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो लेट्स गिव इट अ ट्राई, ठीक है। डॉट स्प्लाइस, ठीक है, 0,1, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 0 से चालू होगा, ठीक है, एंड विल से कि भाई सो सॉरी, ठीक है, कि अपने को फर्स्ट कैरेक्टर ही केवल चाहिए अपने को, ठीक है, यानी एक ही इसके बाद एक ही कैरेक्टर चाहिए फर्स्ट, यानी फर्स्ट इंडेक्स तक ही स्टॉप कर जाना है अपने को, एंड कर जाना है फर्स्ट इंडेक्स तक, ठीक। वी कुड से 3, तो अपने को क्या कर रहे हैं, थर्ड इंडेक्स पे एंड कर जा रहा है, ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक। ये स्लाइस करता है, ठीक। तो व्हाट वी हैड टू डू इज कि एवरी टाइम वी हैड टू गेट दी कैरेक्टर्स, ऑल द कैरेक्टर्स एक्सेप्ट द फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर को हम एंड में जोड़ रहे थे। तो व्हाट वी डिड इज, सॉरी स्प्लाइस लिख दिया मैंने, स्लाइस। हमने बोला स्लाइस कर दो फर्स्ट कैरेक्टर को, फर्स्ट कैरेक्टर को हटा दो, ठीक, और बाकी को रिवर्स कर देना, ठीक है। और फर्स्ट कैरेक्टर क्या करेंगे, उसको एंड में जोड़ देंगे, ठीक है। सिमिलरली रिवर्स ऑफ एलो भी क्या बन जाता है, रिवर्स ऑफ एलो बन जाता है कि भाई फर्स्ट कैरेक्टर को हटा दो और उसको लास्ट में जोड़ देना, और बाकी कैरेक्टर्स का रिवर्स स्टार्टिंग में जोड़ देना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो लेट्स गिव इट अ ट्राई, ठीक है, एक बार हम देखते हैं, ठीक है। रिवर्स ऑफ कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, हेलो ही ले लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट सही आ रहा है, ठीक है। हाई देयर, ठीक है, इस टाइप से कुछ ले लिया हमने, ठीक है, ये भी रिजल्ट सही आ रहा है, ठीक है। तो गेटिंग करेक्ट रिजल्ट्स, एक बार देखिए जरा इस प्रोग्राम को, pretty fair, pretty simple program, straightforward एकदम। now make sure you understand this। ठीक है, आई होप यू हैव टेकन नोट्स ऑल्सो, ठीक है। फेयरली सिंपल प्रोग्राम, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। भाई कहीं किसी भी अगर स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो व्हाट डू, यू टेक दी फर्स्ट कैरेक्टर एड इट टू द एंड, एंड बाकी कैरेक्टर्स का रिवर्स को स्टार्टिंग में जोड़ दो। फिर अगेन बाकी कैरेक्टर्स का रिवर्स क्या होगा, फर्स्ट कैरेक्टर हटाओ, उसको एंड में जोड़ देना, एंड बाकी कैरेक्टर्स का रिवर्स को स्टार्टिंग में जोड़ दो। दिस इज व्हाट रिवर्सल मीन्स, राइट, पुलिंग आउट द फर्स्ट कैरेक्टर एंड पुशिंग इट टू द एंड। दिस इज व्हाट इफेक्टिवली रिवर्सल मीन्स। ठीक है। ऑल्सो मतलब ठीक है। जब आप स्लाइस करते हैं तो हमेशा आप एक कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर को स्लाइस करना है, फर्स्ट कैरेक्टर हटाना, तो हमेशा 1 लिखेंगे आप यहाँ पे, अब कभी 0 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कि भाई नया सेपरेट बनाते हैं हम, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का क्वेश्चन है, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई, ओहो। So the question is, check if a string is palindrome or not, ठीक है। तो अपने को फर्स्ट, बिफोर वी गेट टू द क्वेश्चन, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पैलिंड्रोम, ठीक। ठीक है।
So this word madam is a palindrome, ठीक है. This word madam is a palindrome, ठीक है. Why? Because इसका उल्टा क्या है? when you reverse this string it becomes madam, again मतलब it becomes madam, ठीक है. ma'am, madam, these are all palindromes, ठीक है. Also the word civic is a palindrome, ठीक है. civic is a palindrome मतलब क्या कि अगर रिवर्स करेंगे इसको आप तो CIVIC, ठीक है, वो भी civic ही बनता है, ठीक है. So what's a palindrome? Palindrome is a word, a phrase or a number और जो भी बोलना है आपको, ठीक है, that reads the same backwards as forwards. यानी उसका रिवर्स और पीछे से या आगे से पढ़ो जैसे भी करिए दोनों सेम ही निकल कर आता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दिस वर्ड रोटर इज अ पैलिंड्रोम, लेवल इज अ पैलिंड्रोम, ठीक. एंड और क्या, रीडिवाइडर इज अ पैलिंड्रोम, रेफर इज अ पैलिंड्रोम, ठीक है. व्हाट एल्स, ठीक है. these numbers are also palindromes, ठीक. So you understand what a palindrome is, I hope. I can give you more examples of palindrome. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक. व्हाट्सअप पैलिंड्रोम, ठीक है. तो भाई वर्ड्स दैट, वर्ड्स या नंबर्स, ठीक है, और नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक, या फ्रेजेस या जो भी हैं, ठीक है, और नंबर्स और स्ट्रिंग्स जो भी है, ठीक है, दैट रीड सेम बैकवर्ड्स, ठीक है, रीड द सेम बैकवर्ड्स एज वेल, ठीक है. ये होता है पैलिंड्रोम्स, ठीक है. पैलिंड्रोम, ठीक है. विच मीन्स एग्जाम्पल हो गया इसका रडार, ठीक है. रडार इज अ पैलिंड्रोम. क्यों? क्योंकि इसका इसका रिवर्स क्या होता है, ठीक. तो लास्ट लेटर क्या है, आर है, ठीक है. लास्ट लेटर आर है, फिर ए है, तो हमने लिखा आर, फिर ए, फिर उसके बाद क्या है, डी है, तो हमने लिखा डी, ठीक है. फिर उसके बाद क्या आता है, ए आता है, तो फिर से हमने लिखा ए, फिर उसके बाद क्या है, आर, ठीक. अगेन तो अगर हमने पीछे से भी इसको स्पेल किया तो भी रडार ही आ रहा है, ठीक है. तो सिमिलरली रडार इज अ पैलिंड्रोम, सिमिलरली मैडम इज अ पैलिंड्रोम, ठीक है. सिमिलरली रेफर इज अ पैलिंड्रोम, यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. बट एट द सेम टाइम लेट्स से कि हाई इज नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है. भाई क्योंकि पीछे से क्या रीड करता है, आई एच रीड करता है, ठीक है. सो अंडरस्टैंड व्हाट अ पैलिंड्रोम इज, आई बिलीव. ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योर ओन वंस.
let me discuss the approach. Let me give you a hint and उसके बाद you can maybe try it. I'll give you another minute to try it. ठीक है, तो blank slate से आप चालू कर रहे थे, maybe stuck हो. ठीक है, तो what you do is कि भाई will palindrome कैसे लिखा जाएगा. ठीक है, जैसे कि रेडार को आपको चेक करना है कि या रेफर को आप रेफर को you have to check whether it is palindrome or not. So what you will do is you will check um, the last two letters. ठीक है, and you will check if R is equal to R or not. ठीक है, यानी फर्स्ट लेटर आपने उठा लिया. ठीक है, यानी R फर्स्ट लेटर आपने उठाया. ठीक है, और आपने लास्ट लेटर उठाया. ठीक है, R is equal to palindrome or not. ठीक है, you will return this. ठीक है, and you will say कि भाई if this is equal. ठीक है, then what you do is कि भाई you check for कि भाई return. what do you return? ठीक है, you return R is equal to what do you return? you return भाई कि ये palindrome है कि नहीं. ठीक है, and you भाई and you check for whether the remaining letters. ठीक है, whether the remaining letters यानी E F E are palindrome or not. ठीक है, मतलब ये तीनों palindrome है कि नहीं. ठीक है, यानी what you do is भाई let's say कि is P कैसे लिख रहे हैं इसको. ठीक है, हाँ, इस पी एल आर. ठीक है, ये लिख लेते हैं. ठीक है, इस पी एल आर और नॉट. ठीक है, ये आप बाकी तीन लेटर्स पे भी चेक कर लेंगे. ठीक है, बाकी बचे हुए लेटर्स में भी चेक करेंगे. दिस इज हाउ यू विल रन. ठीक है, अगर ये ट्रू है. ठीक है, एंड ये दोनों ट्रू हैं तो ही ट्रू होगा ये पूरा स्टेटमेंट. ठीक है, तो ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो यू व्हाट यू विल गेट इज ट्रू. ठीक है, विल गेट फॉल्स. ठीक है, तो ये हो गया. ठीक है, तो फाइनली इसका एक बेस केस भी बनाएंगे आप. ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको बन जाएगा कि भाई it will start looking some यार. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बन जाएगा आपका इसका रिटर्न हो जाएगा. क्या करेगा आपका. ठीक है, व्हाट इट विल डू इसकी टू चेक फॉर मतलब अगर जब ये एक्सपैंड होगा. ठीक है, तो ये तो होगा ही इसमें. ठीक है, एंड ठीक है, आपका ये जब एक्सपैंड होगा, इस पैलिंड्रोम एक्सपैंड जब होगा तो इट विल बिकम व्हाट. इट विल बिकम ई इज इक्वल टू ई. ठीक है, एंड क्या होगा, सेम फंक्शन कॉल होगा किसके ऊपर अब. ठीक है, सेम फंक्शन विल बिकम विल गेट कॉल्ड ओवर एफ. ठीक है, दैट्स इट. ठीक है, अब इन तीनों में से कोई भी अगर फॉल्स हो गया, अब इनमें से कोई भी फॉल्स हो गया तो आपके फॉल्स हो जाएगा, वरना तीनों ट्रू हैं तो ट्रू हो जाएंगे. ठीक, और बेस केस आपको बनाना पड़ेगा कि भाई अगर एक ही कैरेक्टर आ रहा है, इफ देयर इज ओनली वन कैरेक्टर और इफ देयर आर लेस देन वन कैरेक्टर्स, देन व्हाट डू यू डू इज कि भाई यू रिटर्न ट्रू. यू रिटर्न ट्रू. ठीक है, दैट्स इट. ठीक है, तो एक बार देखिए एंड नाउ गिव इट अनदर शॉट एक बार अभी.
ठीक है। सो एक बार लेट्स जस्ट ट्राई अटेम्प्टिंग दिस नाउ। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज कि व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट अ प्रोग्राम। ठीक है, और एक फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन इज PLR, पैलिंड्रोम के लिए PLR लिख दिया हमने। ठीक है, PLD भी लिख सकते थे, बट चलिए ठीक है, इस पैलिंड्रोम। ठीक है, स्ट्रिंग ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एंड व्हाट वी विल से इसकी वी विल चेक कि भाई अगर स्ट्रिंग का लेंथ हमने पहले देख लिया, बेस केस हमने देख लिया है कि जैसे ही 1 या 1 से छोटा होता है स्ट्रिंग का लेंथ, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, इफ स्ट्रिंग डॉट लेंथ इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, देन रिटर्न ट्रू। ठीक है, मतलब एक कैरेक्टर तो अपने आप में पैलिंड्रोम होता ही होता है। ठीक, नाउ बेस केस बन चुका है। ठीक है, नाउ लेट्स से कि भाई रिटर्न क्या करना है अपने को। वी ऑलवेज हैव टू रिटर्न वेदर, कि भाई अपने को चेक क्या करना है, वी हैव टू चेक वेदर द फर्स्ट एलिमेंट एंड द लास्ट एलिमेंट मैच और नॉट। ठीक है, ये मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो हाउ डू यू फाइंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग। जैसे कि इसका इस स्ट्रिंग का मेरे को लास्ट एलिमेंट निकालना हो। ठीक है, लास्ट एलिमेंट निकालना हो तो हाउ डू यू डू इट, हाउ डू यू डू इट। ठीक है, इसका अगर फर्स्ट एलिमेंट मेरे को निकालना होगा तो देन इट इज फेयरली सिंपल। ठीक है, बट व्हाट डू आई डू अगर मेरे को लास्ट एलिमेंट निकालना हो, तो लास्ट एलिमेंट निकालना हो तो लेंथ निकालना पड़ेगा, क्योंकि -1 से नहीं आता है। ठीक है, सो देर इज वन बेटर वे टू डू इट। ठीक, वन बेटर वे टू डू इट, अगर हमें किसी स्ट्रिंग का लास्ट एलिमेंट केवल निकालना हो तो व्हाट इज द बेटर वे टू डू इट, आज ही हमने अभी हमने देखा है। ठीक है, इफ यू हैव टू फाइंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग, वी वुड से कि भाई मेरे को केवल लास्ट लास्ट एलिमेंट चाहिए। ठीक है, हाँ सॉरी, स्प्लाइस लिख दिया मैंने, आई ओनली नीड द लास्ट एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग। ये क्यों हो रहा है, हाँ, समथिंग हैज लेट, अच्छा सॉरी 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 गाइस। ठीक है, अगर मुझे लास्ट एलिमेंट चाहिए होगा तो व्हाट आई विल डू, इसके आई विल से, मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल रहा था, सॉरी, आई विल से कि भाई मुझे लास्ट एलिमेंट चाहिए, स्लाइस -1 कर दिया। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये ऐसे हम लास्ट एलिमेंट निकाल सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग का निकाल सकते हैं, बिल्कुल किसी भी स्ट्रिंग का निकाल सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि भाई ABCDEF, ठीक है, डॉट, सॉरी, हाँ, लास्ट एलिमेंट निकालना है अपने को, ओह सॉरी, डॉट स्लाइस कर लिया, लास्ट एलिमेंट आ गया हमारे पास। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू चेक वेदर द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट मैच और नॉट। ठीक है, व्हाट वी विल डू इज कि भाई वी विल से कि भाई स्ट्रिंग को स्लाइस करिए। ठीक है, स्ट्रिंग का फर्स्ट एलिमेंट को चेक करिए। ठीक है, स्ट्रिंग का फर्स्ट एलिमेंट तो 0 से इंडेक्स से मिल जाता है। ठीक है, तो चेक करिए वेदर स्ट्रिंग के लास्ट एलिमेंट से मैच करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अगर ये मैच कर गया, देन व्हाट यू हैव टू डू इज कि यू आल्सो हैव टू चेक वेदर द स्ट्रिंग, द रिमेनिंग स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। एंड रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या है, रिमेनिंग स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग डॉट स्लाइस व्हाट, स्लाइस द फर्स्ट कैरेक्टर कॉमा आल्सो स्लाइस द लास्ट कैरेक्टर। ठीक है, यानी फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, और इस स्ट्रिंग पे चेक क्या करना है, स्ट्रिंग पे अपने को सेम फंक्शन को कॉल करना है, यानी वी हैव टू चेक इफ द रिमेनिंग स्ट्रिंग, and we have to check if the remaining string is PLR or not. ठीक है, तो what we will do is कि we will put a bracket around it and call the function is PLR on the remaining string. ठीक है, तो ये रहा फंक्शन। थोड़ा सा इस फंक्शन को हम एक्चुअली मॉडिफाई करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, बट लेट्स ट्राई एंड सी दिस फर्स्ट। ठीक है, विल मॉडिफाई दिस बाय द वे। अब देखते हैं, रेफर इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, इट इज अ पैलिंड्रोम। ठीक, रेफर्ड इज अ पैलिंड्रोम और नॉट, व्हाट डू यू थिंक विल गेट, फॉल्स, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर और क्या चेक करना है, लेट्स से कि वांट टू चेक नंबर्स नाउ। ठीक है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ठीक है, लेट्स से जिससे पैलिंड्रोम है, ठीक, बिल्कुल पैलिंड्रोम है। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक, फिर 6 एक बीच में है, फिर 5 से लेकर 1 तक। ठीक है, दिस इज अब, ओहो सॉरी, दिस इज अ पैलिंड्रोम, ट्रू आ रहा है हमारे पास। ठीक है, देख लीजिए फिर से ट्रू आ रहा है। ठीक, अगर बीच वाला कैरेक्टर हटा दें, अभी भी पैलिंड्रोम है, 1 से लेकर 5, फिर 5 से लेकर 1, अभी भी ट्रू आएगा आपके पास। ठीक है, और देख सकते हैं, ठीक है, ट्रू आ रहा है। बट अगर यहाँ पे हम 5 के बाद 6 7 डाल दें तो नाउ इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, फिर रिवर्स में 7 5 4 2 1 आ रहा है। ठीक है, तो व्हाट वी गेट इज फॉल्स। देखो ध्यान से, व्हाट वी गेट इज फॉल्स एज अ रिजल्ट। ठीक,
कूल है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द प्रोग्राम दैट वी हैव रिटन लुक्स लाइक, ठीक है। इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आई विल राइट इन अ लेस फैंसी वे, ठीक है। मैं थोड़ा सा बहुत शॉर्टकट में हमने लिख लिया है, ठीक है। बट एक बार मैं पहले प्रोग्राम समझा देता हूँ दोबारा से, ठीक है। व्हाट वी हैव डन इज कि वी हैव चेक्ड कि भाई वेदर द फर्स्ट एंड द लास्ट कैरेक्टर मैच एंड नॉट, ठीक है। तो ये ट्रू है, तो आपको पता है, ठीक है। ट्रू एंड ट्रू इज ऑलवेज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। वाइल ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई लेट्स चेक ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू, ठीक है। दीज आर ऑल इक्वल टू फॉल्स, ठीक है ना। एक भी फॉल्स आ गया तो व्हाट वी डिड इज कि वी चेक्ड वेदर दिस इज वेदर द फर्स्ट एंड द लास्ट कैरेक्टर मैच और नॉट, एंड फिर बाकी पे सेम फंक्शन को कॉल कर लिया हमने, ठीक है। और सबके बीच में एंड लगा दिया। अगर एक भी बार ऐसा होता है कि भाई बचे हुए स्ट्रिंग में कि फर्स्ट एंड कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर मैच नहीं करते हैं, तो व्हाट विल हैपन इसकी द ओवरऑल स्ट्रिंग विल बिकम फॉल्स, मतलब विल नॉट बी अ पैलिंड्रोम, यानी रिजल्ट पूरा ओवरऑल फॉल्स आ जाएगा, ठीक। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन। बेस केस बना लिया, जब एक ही कैरेक्टर बचता है या एक से कम कैरेक्टर्स बचते हैं तो ट्रू रिटर्न कर देना, दैट्स इट, ठीक। एक बार देखिए इस प्रोग्राम को, आई विल गिव यू एग्जैक्टली 30 सेकंड्स, ठीक है, बिकॉज आई हैव टू आल्सो शो अ सिंपलर वे टू सॉल्व दिस। क्विकली देखिए। ठीक है, a fairly simpler and I believe this is clear to everyone, a fairly simpler and easier way to सेम लॉजिक को हम easier तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट मैं अभी के लिए इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। एंड आई विल राइट द लॉजिक, थोड़ा सा मैंने काफी लॉजिक को एक लाइन में कंडेंस कर दिया था, उसकी जगह पे विल राइट द लॉजिक इन सिंपलर वे, ठीक है। सिंपलर वे में लिखते हैं, सेम फंक्शन है, ठीक है। हमने बोल दिया कि भाई लेंथ 1 से कम है तो रिटर्न ट्रू कर देना। और फिर जो है इसको एक लाइन में लिखने की जगह व्हाट वी डू इसकी वी चेक, ठीक है, कि इफ मतलब वी चेक इफ मतलब स्ट्रिंग जीरो, ठीक है, यानी स्ट्रिंग का 0th एलिमेंट, ठीक है, डज इट मैच दी स्ट्रिंग का लास्ट एलिमेंट, ठीक है। हाउ डू राइट दिस, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट स्लाइस, ठीक है, -1 स्लाइस, स्लाइस क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट स्लाइस -1, ठीक है। अगर स्ट्रिंग का 0th एलिमेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट मैच कर रहे हैं, देन व्हाट यू डू इज की वी रिटर्न नथिंग बट वॉट एवर द रिजल्ट फ्रॉम दी, मतलब ये तो यहाँ तक तो ट्रू है ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज कि वी विल चेक if the remaining characters are a palindrome or not, यानी what we will do, we will check if the remaining characters are str dot slice 1 comma -1, ठीक है, whether the remaining characters are minus a palindrome or not। अगर ये पैलिंड्रोम निकल गया यानी फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर मैच कर रहा है तो बाकी के ऊपर है, ठीक है। बाकी में चेक कर लेते हैं, जो भी बाकी के भी अगर सारा पैलिंड्रोम है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। एल्स अगर यही कैरेक्टर मैच नहीं हुआ, अगर इफ दिस डजंट मैच, देन राइट अवे हियर व्हाट वी डू इज की वी रिटर्न फॉल्स राइट अवे, ठीक है। यानी हमने सबसे पहले चेक किया कि भाई इफ दिस मैचेस और नॉट, अगर फर्स्ट कैरेक्टर नहीं मैच किया है
देन व्हाट, अगर मैच कर गया देन वी डू कि भाई आगे के कैरेक्टर्स मैच कराओ, ठीक है, पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है, यानी अप्लाई द सेम फंक्शन ऑन द रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स। अगर नहीं मैच किया तो यहीं से रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। और बेस केस बना रखा है हमने 1 या 1 से छोटा है तो ट्रू रिटर्न करता है। दिस इज ऑल्सो वर्क एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 और 7 है बीच में, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे 6 और 7 नहीं होते तो ये पैलिंड्रोम होता है और ये ट्रू रिटर्न करता है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। पैलिंड्रोम है, ये भी बिल्कुल है, ठीक है, ट्रू रिटर्न करेगा, देखो रिटर्न कर रहा है, ठीक है, ठीक है, यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सिंपलर वे है थोड़ा, लाइंस ऑफ कोड थोड़े ज्यादा है बट लॉजिक वही है, सेम चीज है, थोड़ा सिंपलर वे है, ठीक। आई विल सजेस्ट टू प्रेफर दिस, ठीक है। वाई, बिकॉज थोड़ा सा अगर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चेंज करेंगे ना तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू थिंक एंड इजियर फॉर यू टू मॉडिफाई योर सॉल्यूशन। अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज होता है, अगर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी लाते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक बार टेक अ लुक एट दिस। I'm giving you time to look at both the solutions। ऊपर वाला पेन कमेंट कर देता हूँ। PLR 2 कर देता हूँ उसको, मशीन को। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। फेयरली सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है, नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स है, कुछ कोई बहुत बिग डील नहीं थी इसको क्रैक करना। हम्म हम्म ठीक है, लेट्स कवर अ न्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट कवर करते हैं, which is ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हियर व्हाट वी हैव टू डू इज फ्लैटन फ्लैटन एरे, ठीक है। ये हमें एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, ठीक है। क्वेश्चन दैट वी हैव इज प्रोग्राम टू फ्लैटन एन एरे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, एरे एग्जैक्टली नहीं है, इट इज एन एरे ऑफ एरेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये एरे मिलता है हमें 1 कॉमा से कुछ नंबर्स कुछ भी ले लें क्या, जैसे 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5, ठीक है। व्हाट डज दिस डू, एक एरे है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, कुछ एरेस भी हैं, ठीक है। या फिर और भी एरेस डालते हैं, ठीक है। 6 कॉमा 7, ठीक है। व्हाट डज इट डू, इट फ्लैटन्स इट आउट, ठीक है।
फ्लैटन्स इट आउट, यानी इट फ्लैटन करके क्या बना देगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बना देगा। दिस इज व्हाट इट विल क्रिएट, यानी ये एरे ऑफ एरेस को निकाल के खाली कर देता है, ठीक है, यहाँ पे डंप कर देगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इट डज, दिस इज व्हाट वी मीन बाय फ्लैटनिंग एन एरे, ठीक है। और एग्जांपल्स दिखा, और एग्जांपल्स दिख लेते हैं, ठीक है। देयर कुड बी इवन मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, ठीक है। हम व्हिच इज लेट्स से कि दिस नैरेटिव सेज ए स्ट्रिंग्स ले लेते हैं ना, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा कॉमा सी कॉमा, एरे के अंदर एरे है, उसके अंदर भी एक एरे है, उसके अंदर भी एक एरे है। अब है यहाँ पे डी कॉमा ई, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक। व्हाट हैज हैपेंड इज दैट ए आ रहा, ये आया है, ठीक है भाई, ए कॉमा बी कॉमा, एक अपने आप में एक एरे है यहाँ पे, सी कॉमा समथिंग, और सी कॉमा समथिंग जो है वो एक एरे है, ठीक है। वो एरे कैसा है कि भाई उस एरे के अंदर एक एरे है, उस अंदर के अंदर एक एरे है, और उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, ठीक। दिस विल गेट फ्लैटेंड टू व्हाट, दिस विल गेट फ्लैटेंड टू नथिंग बट एन एरे ऑफ एरे समथिंग लाइक दिस, ए कॉमा this will get flattened to something like this, a comma b comma c comma d comma e, ये फ्लैटन हो गए, ये बन जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आई होप दिस मेक सेंस टू यू। ये आपको करना है, ठीक है, दिस व्हाट यू हैव टू डू। तो एक बार सोचिए कि कैसे होगा, हम थिंक अबाउट इट, कैसे अप्रोच करेंगे, यू हैव टू थिंक अबाउट फर्स्ट कि कैसे अप्रोच करेंगे बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम। तो एक बार अप्रोच सोचिए पहले। स्प्रेड ऑपरेटर नहीं यूज करना है, ये सब चीज नहीं यूज करनी है, आपको वो बनाना है, यू हैव टू बिल्ड समथिंग लाइक दैट। यू डोंट हैव टू यूज स्प्रेड ऑपरेटर, आपको कोर लॉजिक यूज करना है, बेसिकली सिंपल लॉजिक। यू डोंट हैव टू यूज शॉर्टकट्स। जैसे आप शॉर्टकट यूज करते हो, मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने भी कोई डीएसएल का क्वेश्चन है, टिपिकली मतलब इस टाइप का क्वेश्चन से डीएसएल के लिए है, ठीक है, आपको शॉर्टकट्स, आपको ये टेस्ट करने के लिए नहीं है कि आपको शॉर्टकट्स पता है कि नहीं। तो अगर आपने यहाँ पे शॉर्टकट यूज करा, आपने स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया, द इंटरव्यू एंड्स एट दैट वेरी मोमेंट। इंटरव्यूअर के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, इंटरव्यूअर के लिए इंटरव्यू वहीं पे एंड हो जाता है। रिकर्शन यूज करेंगे, रिकर्शन भाई कंटिन्यूअसली आप चेक करोगे, मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार सोचो, ठीक है, कि हर एलिमेंट पे आप चेक करेंगे कि नॉर्मल एलिमेंट है, तो क्या करेंगे, आप एक न्यू एरे बनाते चले जाएंगे, ठीक है। न्यू इज इक्वल टू, अगर नॉर्मल एलिमेंट है तो आपने ए को पुश कर दिया उसमें, ठीक है, फिर अगला एलिमेंट भी नॉर्मल है तो बी को पुश कर दिया आपने। अगर अगले वाले एलिमेंट को चेक करेंगे कि क्या ये एरे है, ठीक है, अगर ये एरे है तो क्या करेंगे, आप इसको फर्दर भेज देंगे फ्लैटन फंक्शन के अंदर, ठीक है, इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को फ्लैटन फंक्शन के अंदर भेज देंगे, ठीक है। तो फ्लैटन फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर के एलिमेंट्स को और फ्लैटन करेगा, तो इसके अंदर के एलिमेंट्स को फ्लैटन करेगा, वो क्या बनाएगा, उसमें से बनाएगा भाई, यार ये क्यों बन जाता है, ठीक है, उसके अंदर से बनाएगा, सी करेगा फ्लैटन, ठीक है। फिर देखिए अगला एलिमेंट फिर से आ रहे हैं तो ये इसको अलग से भेज देगा कहीं पे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसके अंदर वाले एलिमेंट को देखेगा कि फिर से आ रहे हैं तो उसको अलग से भेज देगा, उसके अंदर एलिमेंट को देखेगा फिर से आ रहे हैं तो उसको फ्लैटन करने भेज देगा। फिर फाइनली दिखेगा कि भाई ये एक सिंगल दो एलिमेंट्स है बस, तो फ्लैटन करेगा, उसको डी बनाएगा, वहां से ई निकालेगा, एंड डन, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इन तीनों इन सारे एलिमेंट्स को कॉन्कैट कर लेंगे, यू विल ऑलवेज कीप कॉन्कैटिंग दिस दीज एलिमेंट्स, ठीक है, कॉन्कैट विथ
कॉन्कैट विथ दिस, ठीक है, एंड दिस टू बी फर्दर कॉन्कैटेड विथ दिस, ठीक है। तो रिकर्शन आप यूज करेंगे, यू विल यूज रिकर्शन हियर, ठीक है। करिए जरा एक बार लॉजिक को फिर से अपने खुद से सोचिए जरा। ठीक है, जस्ट स्टार्ट राइटिंग द लॉजिक नाउ, ठीक है। हम लॉजिक लिखना चालू करते हैं। सो व्हाट वी वेर टू डू इज कि भाई हमें फ्लैटन करना है क्या रहेगा, ठीक है ना। व्हाट वी विल डू इज कि वी विल राइट अ फंक्शन, लेट्स से फंक्शन फ्लैटन एरे, फ्लैटन एरे फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। एंड व्हाट वी विल डू इज विल टेक इन इनपुट एज ARR इनपुट ले लेंगे हम, ठीक। बहुत बढ़िया, ठीक है। व्हाट विल वी डू इज कि भाई हम हमेशा, मैं अब एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको, ठीक है। व्हाट विल डू, मैं इस वाले एरे को फ्लैटन करके दिखाता हूँ, इस वाले एरे को, ठीक है। तो इस एरे को हम लॉजिकली देखते हैं पर कैसे काम करेगा, ठीक है। स्टेप्स देखते हैं इसके। इसको फ्लैटन करना हो तो व्हाट वी विल डू इज कि वी विल क्रिएट अ न्यू एरे, जहाँ पे हम एक एरे क्रिएट कर लेंगे जहाँ पे हम एलिमेंट्स क्रिएट करना चालू करेंगे। यानी इस एरे के एक एक करके हम एलिमेंट्स पिक आउट करना चालू करेंगे इस एरे के अंदर से, और उसको कलेक्ट करना चालू करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू इज कि वी विल पिक आउट द फर्स्ट एलिमेंट 1, ठीक है, एंड देन वी विल कॉन्कैट विथ द रिमेनिंग, ठीक है, जो बचा हुआ है, जो भी बच गया यहाँ से, ठीक है, वहाँ से कॉन्कैट कर लेंगे, ठीक है। एंड वी विल कॉन्कैट विथ 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। इसके साथ हम कॉन्कैट करेंगे। दिस इज व्हाट वी विल डू। दिस इज व्हाट इट विल बिकम इफेक्टिवली, ठीक है। नाउ फिर क्या करेंगे, यहाँ से फिर से चेक करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट इसका, अब जो बचा हुआ एरे है, ठीक है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, इसका फर्स्ट एलिमेंट है 2, ठीक है। तो दिस विल गॉट कॉन्कैटेड टू दिस एरे, ठीक है, एंड इट विल से कि भाई अब इसको कॉन्कैट होना है इससे, ठीक है। कूल है, ठीक है। यानी कॉन्कैट विथ किससे, फ्लैटन एरे फंक्शन से। फ्लैटन एरे फंक्शन से जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ हम इसको कॉन्कैट कर लेंगे, ठीक। बहुत बढ़िया, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा वहां से हम कॉन्कैट कर लेंगे, ठीक। और इसको फिर क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, इसमें से एक एलिमेंट निकाला हमने, 2 निकल के आया, 2 कॉन्कैट हो गया वहां से, ठीक। फिर इसको क्या करेंगे, इसको हम कॉन्कैट कर लेंगे विद रिमेनिंग एलिमेंट्स दे रहा है, ठीक। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट लाइन पे क्या होता है, नेक्स्ट लाइन पे क्या होता है, इट विल गेट कॉन्कैटेड विथ
फ्लैटन एरे का फर्स्ट वाले एलिमेंट से, ठीक है। यानी फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या है, नाउ इस फ्लैटन एरे को क्या करना चाहिए, इसको चेक करना चाहिए, ठीक है। यानी आइडियली व्हाट यू आर सेइंग इज कि इस फ्लैटन एरे शुड, सॉरी, flatten array should do two things, ठीक है। if not array, it will check first element, ठीक है। it will check the each element one by one, ठीक है। it will check each element, it will check first element बोल लो या each element one by one, ठीक है। it will check each element one by one, ठीक है। if not array, then it will concat the result, the element, ठीक है, element in न्यू बोल लेंगे उस एरे को, ठीक है, न्यू एरे, ठीक है, न्यू एरे में कॉन्कैट कर देगा। else else if the element in itself is an array, then it will try to flatten element, ठीक है, it will try to flatten that element, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इस एलिमेंट को निकाला इसने और क्या मिल गया, ये एरे मिल गया, ठीक है। then what it will do is कि it will say कि भाई what I will do is that I will now flatten this element, ठीक है। यानी I will now flatten, अब what I will do is कि first इसको हम evaluate कर रहे हैं, ठीक है, we are evaluating this, ठीक है। तो what it will do is कि I will now flatten this one particular element, ठीक है। तो इस particular element को flatten करेगा, ठीक है, and it will concat, after the flattening this, what it will do is कि it will concat the rest, it will concat with the rest of the elements, जो rest बचे हुए elements हैं flatten array के, जो पुराने array में से उनसे concat कर देगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इट विल इफेक्टिवली डू, ठीक है। तो ये अपने करना है, ठीक है। फिर इसको फ्लैटन करेगा, इसको फ्लैटन करेगा तो यहाँ क्या होगा, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स 3 4 5 सारे ही कोई भी इनमें एरे नहीं है, ठीक है। तो व्हाट इट विल डू इज कि इट विल कॉनकैट देम, तो इट विल कॉनकैट इट टू 1 2 ये तीनों एलिमेंट्स कॉनकैट हो जाएंगे, 3 4 5 हो जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड इट विल कॉनकैट इट विद द रिमेनिंग, ये बचा हुआ जो है, ठीक है, इसके साथ कॉनकैट करना है, ठीक है। इसको कैसे कॉनकैट करेगा, अगेन ये सेम चीज ओपन होगी, ठीक है, दिस विल गेट ओपन, ठीक है। ये वाला एलिमेंट इसके अंदर का जो है ये एरे है, ठीक है। तो व्हाट इट विल डू इसकी बाहर वाले एरे को डिलीट करके, ठीक है, इट विल नाउ जस्ट टेक अप दिस एलिमेंट एंड ट्राई टू फ्लैटन इट, इतना ही फ्लैटन करने की कोशिश करेगा। यानी बाहर वाला एरे से का एक एलिमेंट निकाल के, यानी ये रहा उसका एक एलिमेंट निकाल के उसको फ्लैटन करने की कोशिश करेगा। एंड इसको फ्लैटन करने जाएगा तो क्या होगा, इसके दोनों एलिमेंट सिंपल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन इज दैट इट विल गिव यू एन एंड रिजल्ट, ठीक है। इट विल गिव यू एन एंड रिजल्ट, इट विल गेट फ्लैटेंड एज 1 2 3 4 5, ये दोनों एलिमेंट सिंपली फ्लैट हो जाएंगे, ठीक है। 6 7 हो जाएंगे, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये अपने को करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, द लॉजिक बिहाइंड इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बट नाउ वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट इट, ठीक है। तो अपने को समझ में आ गया, ठीक है, कि भाई जब तक एलिमेंट्स हैं नॉर्मल तब तक कॉन्कैट करते जाओ, जैसे ही कोई एरे हो गया यू हैव टू चेक इफ एन एलिमेंट इज एन एरे, इफ अंदर का ही कोई एलिमेंट, यानी ये रहा, जैसे ये वाला एलिमेंट ये अपने आप में एक एरे है, तो व्हाट डू यू कॉल द फ्लैटन फंक्शन ऑन टॉप ऑफ इट, यू कॉल द फ्लैटन फंक्शन ऑन टॉप ऑफ इट, दैट्स इट, ठीक है। तो व्हाट डू वी हैव टू डू, विल से पहले तो एक नया एरे बना लेते हैं ब्लैंक, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एक ब्लैंक एरे हमने बना लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ व्हाट यू डू इसकी भाई एरे आया हुआ है हमारे पास पुराना वाला ऊपर से, ठीक है। तो अच्छा, न्यू इज नॉट अ नेम दैट वी कैन गिव, इज इट, न्यू नाम नहीं हो सकता एरे का, ठीक है। तो न्यू ARR डाल देते हैं नाम इसका एरे का, ठीक है। या फ्लैटेंड डाल देते हैं, फ्लैटेंड, ठीक है, या फ्लैट डाल देते हैं, ठीक है। फ्लैट एरे में हम कलेक्ट करते जाएंगे, अभी ब्लैंक है, कलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे एरे के ऊपर हम लूप चलाएंगे, ठीक है।
हम लूप, सिंपल लूप लगा लेते हैं, फॉर लूप लगा लेते हैं, ठीक है। फॉर आई इज इक्वल टू 0 से लेकर व्हाट यू विल डू इज कि वी विल इटरेट ओवर द एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ से पे इटरेट करेंगे। एरे डॉट लेंथ से एक माइनस करना पड़ता है, ध्यान होगा आपको ध्यान से, तो हमने माइनस करने की जगह पे लेस देन कर दिया, ठीक है। लेस देन तक हम इटरेट करेंगे, ठीक है। एंड देन व्हाट यू विल डू इज कि आई प्लस प्लस, ठीक है। एंड वी विल से कि भाई इफ द एलिमेंट इज नॉर्मल, ठीक है, इफ द एलिमेंट इज नॉट एन एरे, ठीक है। कैसे चेक करते हैं वेदर द एलिमेंट इज एन एरे और नॉट, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए आप, ठीक है। ऐसे चेक करते हैं, एरे डॉट इज एरे एक फंक्शन है, एरे डॉट इज एरे इन सेल्फ इज अ फंक्शन, ठीक है। और हम बोलेंगे कि अगर ये वाला एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, एलिमेंट आई, ith एलिमेंट अगर ये एरे नहीं है, if if it is if it is not an array, यानी if it is equal to false, ठीक है। अगर ये false आता है, if it is not an array, then what do, you simply say कि भाई फ्लैट में इसको कॉन्कैट कर लीजिए, ठीक है। तो फ्लैट में यानी पुश कर दीजिए, पुश कर लीजिए, कॉन्कैट कर लीजिए, जो भी है, ठीक है। पुश में हम करके हम क्या करेंगे, फ्लैट में ये वाला एलिमेंट हम ऐड कर देंगे, वी विल ऐड दिस एलिमेंट टू द फ्लैट एरे, ठीक है। तो वी विल ऐड दिस एलिमेंट हियर, बहुत बढ़िया। इसके सामने कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ सो दैट इट मेक सेंस टू यू समटाइम्स। अब बोलोगे इसको कर्ली ब्रेसेस में क्यों डाला, अगर ये एरे नहीं है, ठीक है, इफ दिस एलिमेंट इज नॉट एन एरे देन यू पुश इट, ठीक है। एल्स क्या करेंगे, एल्स व्हाट यू डू इज कि यू गो फॉर फर्दर फ्लैटनिंग ऑफ द एरे, ठीक है। अब फर्दर फ्लैटन करेंगे इस एरे को, ठीक है। किस एरे को फ्लैटन करेंगे आप, ठीक है। यू विल फ्लैटन दी दिस एलिमेंट, इस अगर ये वाला एलिमेंट एरे निकल जाता है तो व्हाट यू विल डू इज कि यू विल फ्लैटन दिस एलिमेंट हियर, हाँ, यू विल फ्लैटन दिस एलिमेंट हियर, ठीक है। आप इस एलिमेंट को दोबारा फ्लैटन करेंगे, ठीक है। यू विल फ्लैटन इट, फ्लैटन करके जो रिजल्ट आएगा, यानी इसको फ्लैटन करके जो रिजल्ट आएगा, इसको फ्लैटन करके, फ्लैटन एरे से रिजल्ट क्या आएगा, इसको फ्लैटन करके आपका रिजल्ट आएगा ऐसा कुछ आएगा, देखो ध्यान से, कॉन्कैट, इसको फ्लैटन करने के बाद आपका रिजल्ट आता है 6,7, ठीक है ना, यही आएगा, ठीक है। यानी अगर आप एरे के अंदर वाला एलिमेंट, यानी ये वाला एलिमेंट अगर एरे निकल जाता है तो इसको जब फ्लैटन करते हैं तो इट बिकम्स अ सिंपल 6,7 निकल कर आता है, ठीक है। तो व्हाट यू डू इसकी भाई जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, इसको कॉन्कैट कर देना पुराने एरे में, ये हमारे नए फ्लैट वाले एरे में, ठीक है। तो व्हाट विल से इसकी कॉन्कैट फ्लैट डॉट कॉन्कैट दी रिजल्ट ऑफ दी फ्लैटेंड एरे, ठीक है। यानी हमने एरे ऑफ एरेस भेज दिया इसको अंदर, ठीक है। वहां से जो भी फ्लैट एरे आएगा, फ्लैट एरे को हम कॉन्कैट कर देंगे फर्दर फ्लैट एरे में, ठीक है। फ्लैट एरे में हम एलिमेंट्स मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव रिटन इन कोड हियर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। नहीं है एक बार रन करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। एंड एट द एंड व्हाट यू विल डू इज कि वी विल रिटर्न द फ्लैट एरे, ठीक है। रिटर्न द फ्लैट एरे, ठीक है, रिटर्न द फ्लैट एरे, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो कोई बेस केस नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि भाई कुछ है ही नहीं, बेस केस बनाने कुछ है ही नहीं भाई, अपने आप क्या हो रहा है, बेस केस ही यही है बेस केस, दिस इज व्हाट द बेस केस इज, ठीक है। एक्चुअली में ये बेस केस है, ये जो आपको अलग से दिख रहा है ना, दिस इज द बेस केस, ठीक है। कि भाई अगर फ्लैट होता होता, अगर ये एलिमेंट अब एरे नहीं बचा है, ठीक है, केवल एक सिंपल नंबर है या सिंपल स्ट्रिंग है, तो उसको सिंपली पुश कर दो एरे के अंदर। यानी फॉर एग्जांपल बेस केस यही तो है इसका, कि भाई अगला एलिमेंट अगर एरे नहीं है, अगर सिर्फ सिंपल सा नंबर है, तो उसको पुश कर दो इस एरे के अंदर, या ऐड कर दो या कॉन्कैट कर दो इस एरे के अंदर। तो दिस इज व्हाट दी बेस केस इज, ठीक है। इसके साथ इसके चारों तरफ करली ब्रेसेस लगे हुए थे, वो मैंने हटा दिए हैं क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, तो करली ब्रेसेस की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। वरना ऐसे था, करली ब्रेसेस लगे हुए थे, ठीक है। दिख रहे हैं आपको करली ब्रेसेस लगे हुए थे, ये करली ब्रेसेस मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, एक बार देखते हैं whether this program will flatten our array or not. So let's give it an array that looks something like this, and we will call the function flatten array on top of it. Flatten array, फिर ये रहा, आहा, o is not defined, क्या हो रहा है, 3 है, चौथा है, 5वां है, ठीक है। अच्छा, 0 की जगह o लिख के आया यहाँ पे, ठीक है, 0। हाँ, क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पे, कुछ गड़बड़ होगी, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
सॉरी 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 सॉरी, फ्लैट इज इक्वल टू फ्लैट डॉट कॉनकैट, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। हमने कॉनकैट कर लिया और कॉनकैट कॉनकैट करके फाइनली रिजल्ट को फ्लैट में सेट कर दिया। कॉनकैट करके वरना आपको ध्यान हो कि नया एरे बन जाता है, ठीक है। कॉनकैट करके जो भी आता है उसको असाइन करना पड़ता है सेम एरे के अंदर, ठीक है। तो आई बिलीव, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट भी मैं थोड़ा सा आई विल एक्सप्लेन, बट थोड़ा सा इट इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग, सो मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। फर्स्ट एक बार हम समझ लेते हैं, फिर मैं यहाँ पे इक्वल टू क्यों बोला ये भी मैं इक्वल टू हमने क्यों लिखा है ये भी मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बट फॉर नाउ आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, कि भाई क्या लिखा हुआ है। एक बार देखिए इस प्रोग्राम को, ठीक है, एंड मेक श्योर अंडरस्टैंड इट, एंड आई विल एक्सप्लेन इट ऑल ओवर अगेन। बट तब भी नहीं समझ, अगर अभी नहीं समझ आया तब भी नहीं समझ में आएगा अगर आप इसको ढंग से एक बार देखेंगे नहीं, तो एक बार देखिए इसे, ठीक। ऑल्सो आई विल शो यू दिस एरे ऑल्सो, ठीक है, इसको भी फ्लैटन कर देगा ये, जस्ट चेक इट आउट, ठीक है। ये भी फ्लैटन हो जा रहा है, ठीक है, ये फ्लैटन हो जा रहा है, ठीक है। एक बार देखिए इस प्रोग्राम को एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट। थोड़ा सा डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है, थोड़ा सा क्यों, काफ़ी डिफरेंट है, ठीक। एंड मतलब थोड़ा प्रोग्राम itself is pretty unique, so take a look at it, spend some time with it.
कूल है आई थिंक, मतलब दिस इज, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन, ठीक है। विल नॉट गो इनटू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज फंक्शंस बिकॉज इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकम्स प्रीटी ट्रिकी गिवन द फैक्ट दैट व्हाई, मतलब व्हाई नॉट, आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है, इसकी भाई लेट्स से कि इसमें डेफिनेशन ऑफ एन एन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, बिकॉज लेट्स से कि भाई दिस एरे हैज गॉट ए एलिमेंट्स, ठीक है, and each of these elements have on an average of 3 elements by themselves, so yeah, average of b elements that by themselves, ठीक है। तो now what happens is that कि भाई ये ऊपर वाला लूप a टाइम्स रन हो रहा है एंड इसके अंदर वाला फर्दर कॉनकैट फंक्शन कॉल रहा है। पुश तो ऑर्डर 1 कॉम्प्लेक्सिटी से आता है पुश तो, बट कॉनकैट का कॉम्प्लेक्सिटी अपने आप में a और b पे डिपेंडेंट होता है। So now it will become a multiple of somewhere a into b type का कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आएगा, ठीक है। Now you don't know whether what, sorry, a into a plus b का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगा, ठीक है। Now you don't know what n is here, ठीक है, whether n is equal to a plus b बोलना है या n is equal to a बोलना है या n is equal to b बोलना है, ठीक है। वो that definition मतलब is slightly missing here, ठीक है। वेदर मतलब n विल काउंट से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे n 7 है या फिर 1 2 3 और 4 है, ठीक है, 4 है, ठीक है, यू डोंट नो दैट पार्ट, ठीक है। Hence we typically don't go into time complexity, will not go into time complexity of this, ठीक है, बट हाँ, ठीक है, मतलब आई होप दिस मेक सेंस, ठीक है। ठीक है। और इधर वे कॉनकैट जो फंक्शन है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वेरीज इन सेल्फ, वेरीज अ लॉट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो विल नॉट गो इनटू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी व्हेन देयर इज अ कॉनकैट फंक्शन इन्वॉल्व टिपिकली। कूल है। लेट्स मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इस फंक्शन को, ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग हियर। इसकी हमने एक एरे बना लिया, ब्लैंक एरे बनाया है, ठीक है, जिसमें हम एलिमेंट्स को एक एक करके पुश करते चले जाएंगे, ठीक। और हमने अपने ओरिजिनल यानी लेट्स से ये था, ठीक है, या लेट्स से ये था, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या करा, वी चेक्ड कि भाई इसके ऊपर हम लूप लगा के चेक करेंगे कि भाई इसमें एलिमेंट्स अगर एरे नहीं है तो पुश करते जाओ इस एरे के अंदर, ठीक है। तो वी चेक्ड कि भाई इफ एरे डॉट एरे, ये वाला एलिमेंट एरे है कि नहीं है। इफ इट इज इक्वल टू फॉल्स, यानी ये एरे नहीं है, इसकी जगह पे आप इक्वल टू फॉल्स की जगह पे यहाँ पे नॉट भी लगा सकते थे आप, ठीक, जो भी मर्जी आपकी, ठीक है, यहाँ पे नॉट भी लगा सकते हैं। बट चलिए ठीक है, पहले हमने चेक किया कि अगर ये एरे नहीं है देन क्या करेंगे, इस एलिमेंट को सिंपली पुश कर दो और इटरेट कर लो, नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंच जाओ, ठीक है। तो ये 2 पे पहुंच गया, ठीक है। फिर इसको चेक किया, ये भी एरे नहीं है तो इसको भी पुश कर दो फ्लैट फ्लैट में, ठीक है, अगले एलिमेंट पहुंच जाओ। अगले एलिमेंट पे ये एरे नहीं है क्या, नहीं, ये एरे है, ठीक। तो एल्स कॉल हो जाता है। तो एल्स में क्या करेंगे हम, एल्स में बोलेंगे भाई फ्लैट में अभी ऑलरेडी क्या हो चुका है, फ्लैट में we already got 1, 2. now what you do is कि भाई बचे हुए एलिमेंट्स को तुम फ्लैटन करो, यानी फ्लैटन द रिमेनिंग एलिमेंट्स, यानी सॉरी फ्लैटन दिस एंटायर एलिमेंट, ठीक है, एंड देन कॉनकैट इट विथ 1, 2, यानी ये बोल रहा है कि भाई ऐसा करो कि 1, 2 तो मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, what you should do is कि now concat it with after flattening 3, 4, 5, ठीक। तो 3, 4, 5 को फ्लैटन होगा तो यही निकल जाएगा रिजल्ट, ठीक है। इट विल बिकम दिस, ठीक है, एंड दिस विल गेट कॉन्कैटेड विद दिस टू बिकम 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, ये बन जाता है, ठीक है, दिस यू नो, ठीक, कूल है, ठीक है। अब ये लूप फर्दर खत्म, ठीक है, अगले वाले एलिमेंट पहुंच जाते हैं। तो अगला एलिमेंट 6, 7 है, ठीक। तो अगेन व्हाट इट सेज इज कि भाई इसको कॉन्कैट करेंगे हम 6, 7 से, तो 6, 7 को पहले फ्लैट कर लो। तो फ्लैट किया 6, 7 को, तो ये आ गया 6, 7 को फ्लैट करने के बाद, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको कॉन्कैट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको जब हमने कॉन्कैट किया तो दिस इज द रिजल्ट दैट वी गॉट 1, 2, 3, 6, 7, ठीक। This is what the program is saying. Every time we check if it is a normal element, if it is a string or an number, तो उसको पुश करते जाते हैं। जैसे ही ये नॉर्मल एलिमेंट नहीं, ये अपने आप में एक एरे निकलता है, तो व्हाट वी डू इज कि वी सेंड इट टू द फ्लैटन एरे फंक्शन, यानी ये फ्लैटन एरे फंक्शन पे सेंड कर देते हैं वापस से, एंड वहां से जो रिजल्ट आता है उसको कॉन्कैट कर लेते हैं फ्लैट एरे में, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ मैं क्विकली आई वांट टू शो यू समथिंग एक बार, which is कि भाई मतलब आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। एंड इफ आई वर टू, ठीक है, टेक 10 seconds to actually
लुक एट दिस, फिर अपन देखते हैं। टेक 30 seconds टू लुक एट द सॉल्यूशन, एक बार और समझने की कोशिश करिए, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। जब हमने फ्लैट को कॉन्कैट करा है तो वी हैड टू रीअसाइन इट टू फ्लैट। आई विल टेल यू व्हाई, ठीक है, बिकॉज अगर एक सिंपल सा एरे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है, मैं ये वाला स्टेटमेंट बात कर रहा हूँ कि भाई फ्लैट को कॉन्कैट करा है, यानी यानी 1 2 को जब कॉन्कैट करा है 3 4 5 से, तो उसको फिर से असाइन भी करना पड़ता है, अनलाइक पुश, ठीक है। तो वाई, ठीक है, तो एक बार देखते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिया, लेट्स से ए बी सी वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है, जिसके अंदर ये 2 नंबर्स हैं 1 2 3, ये 3 नंबर्स हैं, ठीक है। जब ए बी सी डॉट पुश करते हैं ना, जब ए बी टू सी में आपने पुश करा है लेट्स से एलिमेंट 4, ठीक है, तो क्या हो गया, अब ए बी सी देखोगे तो ए बी सी अपडेट हो जाता है, अपने आप अपडेट हो जाता है, 4 एलिमेंट भी इसमें आ जाता है, ठीक, कूल है, ठीक है। अब यानी अभी एबीसी क्या है, एबीसी राइट नाउ इज 1 2 3 4, ठीक है। नाउ बट इफ यू कॉन्कैट समथिंग टू एबीसी ना, तो व्हाट हैपेंस, व्हाट आई एम सेइंग इज कि एबीसी में अगर आप पुश करते हो तो ओरिजिनल एरे मॉडिफाई हो जाता है, 1 2 3 4 मिलता है आपको, ठीक है। बट एबीसी में जब आप कॉन्कैट करते हैं ना, जैसे कि हमने इसमें कॉन्कैट करा 8 9, ठीक है, तो व्हाट यू गेट इज कि आपको रिटर्न तो मिलता है 1 3 3 4 8 9, बट ओरिजिनल एरे मॉडिफाई नहीं होता है, ओरिजिनल एरे मॉडिफाई नहीं, ओरिजिनल एरे 1 2 3 4 ही पड़ा हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ओरिजिनल एरे मॉडिफाई हो, तो व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू विल हैव टू से कि भाई ए बी सी इज इक्वल टू कॉन्कैट करो, यानी ये पूरा, ठीक है, कॉन्कैट करके जो रिजल्ट आता है वो, ठीक है, यानी व्हाट यू विल हैव टू से, यू विल हैव टू मॉडिफाई एक्सप्लिसिटली मॉडिफाई द ओरिजिनल एरे। अब एबीसी मॉडिफाई हो गया, ठीक है। नाउ एबीसी इज इक्वल टू 1 2 3 4 8 9, ठीक, यानी आपको जब कॉन्कैट करते हैं तो यू हैव टू रीअसाइन इट टू सम वेरिएबल या सम एरे, ठीक है, सम वेरिएबल, ठीक है। तो हमने इसको असाइन कर लिया, ठीक है। तो व्हाट यू हैव डन इज कि हेंस व्हाट वी हैड टू डू इसकी, जब हमने कॉन्कैट किया तो हमने इसको रीअसाइन किया है सेम वेरिएबल में, क्योंकि ओरिजिनल वेरिएबल मॉडिफाई नहीं होता है। देखो जरा भाई, टेक अनदर 30 सेकंड्स, ट्रिकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको देख लो अनदर 30 सेकंड्स के लिए, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, विच इज कि भाई इसको नाम देते हैं कैपिटलाइज लेटर्स। तो इसमें आपको क्या करना है, तो प्रॉब्लम, एक और लास्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है फॉर द डे, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू आर गिवन एन एरे, ठीक है, यू आर गिवन एन एरे, से लेट्स से यू आर गिवन एन एरे हाई कॉमा हेलो कॉमा ला, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, स्पेनिश वर्ड या कुछ है शायद, वाला आई एम नॉट श्योर, ठीक। Now what you have to do is that you have to modify this array, या फिर जो भी आपको रिजल्ट में क्या देना है, what you have to give out in result is this, let me show you the result once. You have to give out this in result, aha, you have to give out this in result, yani the first character of all the elements in the array have to be modified. This is what you have to give out as a result, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है क्या करना है अपने को? फेयरली सिंपल है ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। बट मतलब आई थिंक ऑलरेडी द सेशन इज प्रीटी लेंथी, ठीक है, तो आई विल
wrap this up quickly, ठीक है, एक बार quickly cover करता हूँ, ठीक है, कैसे करेंगे इसको अटैच, ठीक है। तो what you will do is कि भाई we will what we will do is कि we will check, ठीक है, हर टाइम इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट हम निकालेंगे, ठीक है, हम वी विल पुल आउट द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, एक बार आप सोचिए, हम मैं फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, आप फर्स्ट एलिमेंट निकालेंगे, उसको कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है, एंड उसको आप एक रिजल्टेंट एरे में पुश करते चलेंगे, ठीक है, उसको आप कैपिटलाइज करके उसको रिजल्टेंट एरे में पुश करते रहेंगे, और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स यानी यानी सॉरी मैं कह रहा हूँ कि आपको हाई को निकाल के, सॉरी आप हाई को निकाल के कैपिटलाइज कर देंगे एच और पुश कर देंगे एक नए एरे में, ठीक है, और बाकी दोनों को आप सेम फंक्शन कैपिटलाइज करने वाले फंक्शन पे इस पूरे एरे को, बाकी बचे हुए एरे को आप पुश कर देंगे, ठीक है, करिए एक बार ट्राई करिए। थोड़ा सा ट्रिकी है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ, फर्स्ट लेटर of an of all strings in an array of strings. This is a problem statement.
यार ये हो जाना चाहिए आपसे ना, you should be able to tackle this. Guys, we will do a thing that I think this session is already very long. Okay, we will. I will give you some time to attempt this. Okay, and also this question will be there as a practice problem, and fairly simple problem है बहुत difficult नहीं है ठीक है and we will attempt this question at a you will attempt this question by yourself ठीक है I can I can clearly see कि मतलब थोड़ा सा and we will also put this question up in as a practice problem also ठीक है self solve ठीक है and we will cover this question um, after you have attempted it once ठीक है बट फेयरली सिंपल है आई बिलीव क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है ठीक है एक एक करके एलिमेंट्स निकालेंगे आप ठीक है एक एलिमेंट निकालेंगे इसका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करेंगे ठीक है पुश करेंगे एरे में ठीक है फिर बाकी उसको ऐड करेंगे बाकी बचे हुए एरे के साथ ठीक है बाकी बचे हुए एरे के साथ ठीक है एंड बचे हुए एरे के रिजल्ट के साथ ठीक है तो आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस ठीक है एंड ठीक है let us wrap this session up ठीक है because it's already very lengthy. Let us wrap this session up. Yes, recursion से ही केवल solve करने की कोशिश करेंगे and we will try to um, solve this by your own first ठीक है guys मतलब if you want मतलब I can show you the problem statement all over again so that you can take note of it so that you can take note of the problem statement ठीक है guys I think मतलब I hope कि मतलब you can see कि भाई recursion is a powerful tool as well as मतलब requires a lot of thinking also ठीक है
तो हेंस मतलब यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई जितना थॉट प्रोसेस लगता है, जितना लॉजिक लगता है उसमें, जितना से आपको यू हैव टू थिंक वन स्टेप अहेड एक्चुअली, और थिंक टिल द एंड. तो you can expect कि questions on recursion will pop up in your interviews and you should be well prepared with it. ठीक है, but we'll have enough practice on this. Enough practice करेंगे हम लोग. ठीक है, कर भी लिया है, काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं. ठीक, बहुत ज़्यादा ब्रेड नहीं है रिकर्शन में. ठीक है, obviously there are a lot more questions that can be built. ठीक है, but the questions that we have covered are sufficient, should be able to help you in these interviews. ठीक है, इसी के कुछ variations और हैं जो हम cover करेंगे. ठीक, but I hope this will be helpful. ठीक है, with this guys I'll wrap up this session for the day. ठीक है, and मतलब this session specifically. ठीक, and we will probably hopefully catch up again next day. And for now अभी के लिए इसको wrap up करते हैं. ठीक, if you have any doubts, any problems, any queries, you can always post it in various threads and we'll take it up. ठीक, प्रैक्टिस करते रहना गाइस. रिकर्शन क्वेश्चन आएगा, रिकर्शन जरूर प्रैक्टिस कर लेना. ठीक, and I'll also share a lot more questions with you for practice. But at this point, we'll wrap up the session. I hope you enjoyed it. I hope you learned new things. I hope कि भाई नए टेक्निक्स भी आपको सीखने मिला और कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स भी आपको सीखने मिला. I hope you got challenged. तो with this, and challenge is a good thing. मतलब you should keep challenging yourself and you should keep facing situations where you get challenged. With this, guys, we'll wrap up the session and see you again next time.